हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स। पिछले चैप्टर में हमने ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक पढ़ लिया था, उसमें कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने लगाए थे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टर्न आउट के बारे में। ठीक है, क्या होता है कि जब भी ट्रेन को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो हमको ट्रैक में कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। इस अरेंजमेंट्स को कहते हैं टर्न आउट। तो टर्न आउट दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पहला है पॉइंट और दूसरा है क्रॉसिंग। ठीक है, तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स आर प्रोवाइडेड टू हेल्प ट्रांसफर रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। A complete set of points and crossings along with the lead rails is called a turnout। तो ये जो फिगर देख रहे हैं ना, ये पूरा इसे हम कहते हैं टर्नआउट। और ये है आपका पॉइंट लोकेशन, ये इसको हम स्विच भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेन स्विच कर रही है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, और क्योंकि यही लोकेशन है जिस मतलब ये पॉइंट है जहाँ से ट्रेन अपनी लोकेशन चेंज कर रही है, इसलिए हम इसको पॉइंट कहते हैं। और क्रॉसिंग क्या है? जहाँ पर ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो क्रॉसिंग क्या है? ये है क्रॉसिंग। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पहला ट्रैक था और ये दूसरा ट्रैक है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग। और ये पॉइंट्स और क्रॉसिंग को मिलाते हैं और बोलते हैं कि एक टर्न आउट हो गया। टर्न आउट क्या करता है? रेल को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चेंज करने के लिए फैसिलिटेट करता है। कैसे काम करता है इसको हम इस यूट्यूब वीडियो में देख लेते हैं एनिमेशन के थ्रू। Switches and crossings play an essential role in connecting the rail network. We use them to guide trains from one track to another and to enable lines to cross paths. Put simply, they're the junctions that allow us to create a multi-lined, multi-routed rail network. At Network Rail, we own over 20,000 switch and crossing units. They come in many different shapes and sizes, and all are made to measure for their specific location. To understand how switches and crossings work, we first got to look at the wheel-rail interaction. Train wheels move along the rails guided only by the pound coin-sized area of wheel that sits on the railhead. The wheel rim, or flange, doesn't normally touch the rail. Flanges are only a last resort to prevent the wheels becoming derailed. A switch can guide a wheel in one of two directions. A crossing creates a gap in the rail for the flange to pass through. This is a switch, also known as a point. It's the moving part of the switch and crossing layout, and is made up of two long blades which can move across to guide the train one way or another. This is the switch rail, and this is called the toe. This is called the stock rail. It's a non-moving part of the switch. The two switch blades are fixed to each other by a stretcher bar to ensure that when one is against its stock rail, the other is fully clear and will provide room for the wheel flange to pass through cleanly. This is a crossing. It's the non-moving part of the switch and crossing layout that allows a train to pass in either direction once the switch has been set. This is the nose of the crossing. Either side of the crossing area, wing and check rails are provided to assist the guidance of the wheel sets through the crossing. Crossings can be either fabricated, made up of two machined rails joined together, or they can be cast as a single unit. Modern crossings are now cast from manganese steel, which is an advanced alloy that gets harder with use. This is an important property, as the nose of the crossing can take high impact loads as train wheels pass through. My name's Long Swanson and I'm a graduate engineer working for Network Rail. I'm here today to teach you about switches and crossings. The most simple form of S&C is the turnout. This is a left-hand turnout. As you can see, it diverges from the main route in a leftward direction. This is how it works. In normal mode, the left-hand wheel rolls along the switch rail, and there's flangeway clearance for the right wheel to continue along the stock rail. The inside surface of the right flange is kept on course by the check rail. This restrains the wheel set and ensures it is directed along the correct route. Meanwhile, the left wheel transfers contact between the different parts of the crossing. That's where there's a high impact load. In the reverse, the right wheel rolls over the switch rail and follows its geometry. The inside surface of the left flange is guided by the check, forcing it to follow the stock rail on the new route. And the right-hand wheel makes the crossing, again impacting a load on the crossing nose. There are many different types of switch and crossing on the network. They include turnouts, diamonds, crossovers, and slip diamonds. The type we use is determined by a number of factors, including the number of lines involved, frequency of use, and running line speed. Trains travelling at high speeds need long switches and crossings.
ठीक है, तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एक मूवेबल रेल है जो हमारी, जिसको हम कहते हैं टंग रेल, उसको मूव करके ट्रेन की डायरेक्शन को कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये टर्नआउट का डायग्राम, जिसको आपको याद रखना है एग्जाम पर्पज के लिए। यहाँ पर कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं, इनको देख लीजिए। पॉइंट और स्विच ब्लेड्स, ठीक है, ये ब्लेड की तरह आपने देखा ना, कितना पतला सा ब्लेड था जो मूव कर रहा था। ये है हमारी, ये जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये है टंग रेल। टंग रेल क्या है, ये मूव करती है। ठीक है, इसका आगे वाला पोर्शन टेपर्ड रहता है जो जुड़ जाता है स्टॉक रेल से। जैसे यहाँ पर देखिए टेपर्ड सेक्शन है। अभी क्या है, ये हुआ है इस डायरेक्शन पे। यहाँ पर देखिए इस स्टॉक रेल से, ये जो स्टॉक रेल है ना, ये फिक्स रेल लंबी सी, इसे कहते हैं स्टॉक रेल। स्टॉक रेल से चिपा हुआ है, तो व्हील कहाँ जाएगा, इस रेल से होता हुआ इस डायरेक्शन पे मुड़ जाएगा, राइट हैंड डायरेक्शन पे। और यहाँ पर देखिए गैप बन गया। इस गैप में क्या करेगा, फ्लेंज जो रेल, सॉरी, ट्रेन के व्हील का फ्लेंज है, वो इस स्लिट से या इस गैप से आगे मूव कर जाएगा, ताकि यहाँ से ये मूव करके इधर आ सके। ठीक है, एक तरह से हमको गैप मिल गया। तो ये टंग रेल क्या होती है, एक मूवेबल रेल है जो ट्रेन की डायरेक्शन को बदलने में हेल्प करती है। ये जो टंग रेल, जो रेड वाली रेल है, टंग रेल का आगे वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं टो, और पीछे वाला हिस्से को कहते हैं हील। हील क्या है, ये हील फिक्स रहता है। जब भी हम स्ट्रेचर बार से, ये जो स्ट्रेचर बार है ना, ये स्ट्रेचर बार आगे एक बॉक्स लगा रहता है। ठीक है, अब ये स्ट्रेचर बार को हम इधर की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो टो है वो इस स्टॉक रेल से जुड़ जाएगा और इधर वाला गैप बन जाएगा। तो जो हील क्या करता है कि जैसे मूव करने पर हील इस टंग रेल को फिक्स रखता है अपनी पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पर हम एक हील ब्लॉक लगाएंगे जो कि स्टील का या कार्बन का होगा। वो टंग रेल को अपनी पोजीशन पे यहाँ पर फिक्स रखेगा, ताकि गेज चेंज ना हो जब ये रेल मूव करे आगे पीछे। ठीक है, तो ये होता है हील। और आगे का जो मूवेबल पार्ट है, जो ब्लेड जैसा होता है, वो होता है टो। ठीक है, स्टॉक रेल्स क्या है, ये फिक्स रेल्स रहती हैं। ये जो लंबी लंबी जो रेल दिख रही हैं, जो सबसे आउटर वाली है, इनको कहते हैं स्टॉक रेल्स। ठीक है, चेक रेल्स होती हैं कुछ। चेक रेल्स क्या होती हैं, देखिए जब भी यहाँ पर टर्न हो रहा है, ठीक है, ट्रेन में टर्न हो रहा है, तो ट्रेन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है आउटर डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिरेलमेंट के। तो ये चेक रेल क्या करते हैं, चेक रेल के अंदर, ये है चेक रेल और ये है आपकी स्टॉक रेल। तो जब फ्लेंज इसके बीच से गुजरता है, तो क्या है, फ्लेंज इन दोनों रेल्स के बीच में है, तो आगे पीछे मूव नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। जितना गैप है इस चेक रेल और स्टॉक रेल के बीच में, जो फ्लेंज है व्हील का, सिर्फ वो उतना ही डिस्टेंस मूव कर पाएगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, तो ट्रेन के डिरेलमेंट के चांसेस घट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी आप विंग रेल देख रहे हैं ना, ये विंग रेल का भी काम सेम है। इनके बीच के स्लॉट से फ्लेंज मूव करता है, और ये फ्लेंज सिर्फ इतना जितना गैप है इनके बीच में ही उसको मिल पाएगा मूव करने के लिए। तो कभी अगर फोर्स ज़्यादा लग गया ट्रेन पे, तो ट्रेन बाहर के लिए मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि चेक या विंग रेल उसको पकड़ के ट्रैक में ही रखेंगी। तो ये होते हैं कुछ चेक और विंग। ये जो नोज देख रहे हैं यहाँ पे, ये होता है अभी क्रॉसिंग। क्रॉसिंग बताया था कि यहाँ से ट्रैक एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इस पोर्शन को कहते हैं क्रॉसिंग। ये जो नोज रहता है, ये होता है हाई मैग्नीज का, सॉरी हाई कार्बन का या मैग्नीज का। हाई कार्बन क्या है, वाइब्रेशन प्रूफ रहता है, वाइब्रेशन को डैम्प करता है। और जो मैग्नीज क्या करता है, जैसे जैसे इम्पैक्ट पड़ता रहता है वो हार्ड होता जाता है। तो ये मैग्नीज का होता है, या तो हाई कार्बन का बना रहता है। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पर एक स्लिट बनाया, एक अरेंजमेंट बनाया, हम इसको जोड़ नहीं सकते थे। अगर सपोज सिंपली अगर ट्रैक ऐसा होता, तो क्या होता, यहाँ से व्हील आया और इस पर इम्पैक्ट करना पड़ा, तो इम्पैक्ट से क्या होगा, ये जो व्हील है इसमें वेयर एंड टियर होगा। तो हम इम्पैक्ट ना करें, इसलिए हमको इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ा, ताकि स्लिट से बीच से फ्लेंज गुजर जाए और किसी भी रेल को ऊपर से इम्पैक्ट ना दे। इसलिए हमको क्रॉसिंग में इस तरह के अरेंजमेंट लगाने पड़ते हैं। तो विंग रेल भी हो गया, चेक रेल भी हो गया, स्टॉक रेल भी हो गया। रनिंग रेल्स क्या है, जिन रेल्स पे फाइनली अपनी ट्रेन रन करने वाली है, तो ये हो गया आपके रनिंग रेल्स। तो ये डायग्राम आपको याद रखने हैं, और जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आपको याद रखना है। अच्छा, इसी पॉइंट को हमने थोड़ा जूम करके दिखाया है यहाँ पे। ये पॉइंट वाला पोर्शन है, क्रॉसिंग यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, टंग रेल कहाँ से कहाँ तक है, जो रेल आपकी मूव कर रही है, ये है आपकी टंग रेल। ठीक है, ये है आपका हील पॉइंट, और ये जो देख रहे हैं ना शेडेड पोर्शन, ये है आपका हील ब्लॉक। हील ब्लॉक क्या करेगा, टंग रेल को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखेगा। तो हील ब्लॉक किसका होता है, या तो स्टील या कार्बन का होता है। ये है टो ऑफ स्विच, ये है हील ऑफ स्विच, पहले आप देख चुके हैं। स्टॉक रेल क्या है, ये पूरी रेल जो फिक्स है और स्ट्रेट जा रही है, ये है आपकी स्टॉक रेल, पूरी रेल लेंथ के बराबर। टंग रेल आपको पता ही है मूवेबल रेल है। स्लाइड चेयर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हमारी टंग रेल है वो मूव कर रही है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल चेयर रखेंगे तो टंग रेल मूव नहीं कर पाएगी, उसको स्लाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन है, इसको काफी ज्यादा थ्रो करना है, ये मूव करेगा पोर्शन। यानी ये जो रेल है ये स्लाइड करेगी, तो स्लाइड करने के लिए हमको स्पेस देना होगा उसे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की चेयर या फास्टनर लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लाइड चेयर। इस स्लाइड चेयर के ऊपर ये टंग रेल स्लाइड करती है। ये है पुल रॉड। पुल रॉड क्या करेगा, ये जो आपकी रेल है ना, ये दोनों
टंग रेल आपस में जुड़ी रहती हैं एक स्ट्रेचर बार की मदद से, ठीक है। और ये है लीवर बॉक्स। इस लीवर बॉक्स में कंट्रोल रूम से सिग्नल पहुंचता है और ये लीवर बॉक्स क्या करेगा, लीवर की मदद से इस स्ट्रेचर बार को आगे या पीछे मूव कराएगा ताकि ये जो पॉइंट है आपका स्टॉक रेल से जुड़ सके या बाहर जा सके। तो ये हो गया आपका स्ट्रेचर बार या पुल रॉड, ठीक है। तो ये पॉइंट का सेक्शन हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे टर्न आउट क्या होता है बताया था अभी। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विद लीड रेल्स बाय मींस ऑफ विच द रोलिंग स्टॉक यानी कोई भी व्हीकल, लोकोमोटिव या कुछ भी मे बी डाइवर्टेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, ठीक है। बताइए आपको अब ये जो डायरेक्शन ऑफ टर्न आउट का कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए, जो आने वाली ट्रेन है, ठीक है, रनिंग ट्रेन, उसको लेफ्ट साइड में मोड़ना है या राइट साइड में मोड़ना है, उसके हिसाब से हम एक टर्न आउट लगाते हैं। अगर ट्रेन लेफ्ट हैंड में मुड़ रही है तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड टर्न आउट। अगर ट्रेन को हमें राइट हैंड में मोड़ना है तो उसे हम कहते हैं राइट हैंड टर्न आउट। So a turnout is designated as a right hand or left hand turnout depending on whether it diverts the traffic to the right or to the left. तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये है लेफ्ट हैंड टर्नआउट का। फिर आती है टंग रेल। टंग रेल भी आपको ऊपर बताया था क्या होता है। इट इज अ टेपर्ड मूवेबल रेल मेड ऑफ हाई कार्बन और मैग्नीज स्टील टू विथस्टैंड वियर, ठीक है। ए टंग रेल इज आल्सो कॉल्ड ए स्विच रेल, क्यों, क्योंकि ये स्विच कर रही है ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में। स्टॉक रेल क्या है। इट इज अ रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल ऑपरेट्स, क्यों, क्योंकि टंग रेल जो है स्टॉक रेल पे जाकर ही चिपकती है ताकि व्हील उसके ऊपर से पास कर सके। तो स्टॉक रेल भी आपने ऊपर से देखा था, ये फिक्स्ड रेल थी जिसपे व्हील्स ट्रेवल करते हैं। पॉइंट्स और स्विच, ये भी पॉइंट आपने देख लिया था। ए पेयर ऑफ टंग रेल एंड स्टॉक रेल विद द नेसेसरी कनेक्शंस एंड फिटिंग्स फॉर्म ए स्विच। वो पॉइंट जहां से ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है उसे हम कहते हैं स्विच। तो हमने वहां पर जितने भी अरेंजमेंट्स लगा रखे हैं वो सब स्विच के अंदर आ जाएंगे। क्रॉसिंग क्या है। इट इज द डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन वेयर टू रेल्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है। क्रॉसिंग आपने देखा था ऊपर। टू परमिट अ व्हील फ्लैंज ऑफ ए रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, ठीक है। जो व्हील फ्लैंज है यही दिक्कत कर रहा था, इसी वजह से हमको क्रॉसिंग में इतना अरेंजमेंट करके स्लिट वगैरह बनाना पड़ा। तो क्रॉसिंग क्या है, जहां से एक रेल दूसरे रेल को क्रॉस करे उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग। स्विच एंगल क्या होता है। इट इज द एंगल बिटवीन गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड दैट ऑफ ए टंग रेल एट द थ्योरेटिकल टो ऑफ स्विच इन इट्स क्लोज पोजीशन। देखिए, ये जो आपकी रेल है ये है आपकी स्टॉक रेल, ठीक है, और ये है टंग रेल, ठीक है। अब ये क्लोज्ड पोजीशन है। क्लोज पोजीशन का मतलब ये टंग रेल स्टॉक रेल से जुड़ी हुई है। इस क्लोज पोजीशन में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं स्विच एंगल, ठीक है। और गेज फेस क्या होता है। गेज फेस होता है ये वाला फेस, कि अंदर वाला फेस, क्योंकि अंदर वाले फेस पे तो अपना व्हील मूव करता है, तो अंदर वाले फेस को हम गेज फेस कहते हैं, ठीक है। और बाहर वाला आउटर फेस हो गया, आउटर गेज हो गया। तो इन दोनों गेज फेस के बीच का जो एंगल है इसको हम कहते हैं स्विच एंगल। फिर आता है हील डाइवर्जेंस। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसमें ये देखिए प्लेट जैसा सिरा है ना, ये है टो, और ये जो लंबी सी टेपर्ड रेल गई है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारी टंग रेल, यही है मूव करेगी। तो टंग रेल का पीछे वाला पोर्शन हील ऑफ स्विच है, ठीक है, ये फिक्स रहेगा। और ये वाला जो टो है ये मूव करेगा, कभी जाके इस रेल से जुड़ेगा या बाहर निकलेगा। तो ये जो हील वाले पोर्शन पे कुछ डेफिनेशन है। क्या है कि हील में जो फ्लेंज है ये हील से पास करेगा, इसके बीच से गुजरना ही है। तो कुछ हमको क्लियरेंस देनी पड़ेगी ताकि हमारा फ्लेंज जो कि बड़ा पोर्शन है एक व्हील का वो वहां से स्मूथली पास हो सके। तो इसके लिए एक ये डायग्राम में आप देखिए क्या होता है हील क्लियरेंस और हील डाइवर्जेंस, ये पोर्शन। हील क्लियरेंस क्या था ऊपर डेफिनेशन में देखा था। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द टंग रेल एट द हील ऑफ स्विच। अब गेज फेस तो आपको पता ही है क्या है। ये हमने हील ऑफ स्विच का सेक्शन डायग्राम बनाया है। यहाँ पर एक ये गेज फेस है स्टॉक रेल का और ये गेज फेस है टंग रेल का, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है ये डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं हील क्लियरेंस और हील डाइवर्जेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। फ्लेंज वे डेप्थ क्या होती है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द रेल, यहाँ से जो हमने हील ब्लॉक रखा हुआ है उसका अपर सरफेस, इनके बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं फ्लेंज वे डेप्थ। ये क्यों देते हैं, ताकि जो फ्लेंज ऑफ द व्हील है, क्योंकि फ्लेंज ऑफ द व्हील थोड़ा बड़ा होता है ट्रेड से, लंबा होता है। अब ये फ्लेंज स्मूथली यहाँ से पास कर सके, उतना गैप उसको क्लियरेंस मिल सके, इसलिए हम फ्लेंज वे डेप्थ देते हैं। एक होता है फ्लेंज वे क्लियरेंस। फ्लेंज वे क्लियरेंस क्या है, ये है स्टॉक रेल और ये है टंग रेल, इनके बीच का जो क्लियरेंस मिल सके, ताकि अगर ये जो व्हील है ये अगर इधर मूव भी कर सके तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हील इससे टकराए और इसके आगे ना निकल पाए, ठीक है। तो इसलिए हम देते हैं फ्लेंज वे क्लियरेंस। कितना क्लियरेंस देते हैं फ्लेंज को। तो ये कुछ तीन डिफिनेशन से आपको याद रखनी है। हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस जिसको कहते हैं, दूसरा है फ्लेंज वे डेप्थ ताकि फ्लेंज को डेप्थ मिल सके, और फ्लेंज वे क्लियरेंस ताकि इसको लेटरली इतना स्पेस मिल सके फ्लेंज को मूव करने के लिए।
क्या है फ्लिंज में क्लियरेंस? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजॉइनिंग फेसेस ऑफ रनिंग रेल एंड द चेक रेल और विंग रेल एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग। अभी फिगर में देखा। थ्रो ऑफ स्विच क्या है? दिस इज द डिस्टेंस थ्रू विच ए टंग रेल मूव्स लेटरली एट द टो ऑफ द स्विच टू अलाउ मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। देखिए ये जो आपकी टंग रेल है, ये कितना थ्रो हो रही है एक तरफ, इसे हम कहते हैं थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, ये कुछ थ्रो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम थ्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दूसरा वाला हिस्सा यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस पूरे डिस्टेंस को कहते हैं थ्रो ऑफ स्विच। कितना हम उस टो ऑफ स्विच को थ्रो कर सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में बस आपका इतना ही पोर्शन है। रेलवे इंजीनियरिंग का जितना पोर्शन हो सकता था वो यहाँ से खत्म होता है। अगली बार से हम टर्न स्टार्ट करेंगे।